हेलो माय डियर व्यूअर्स, सिंप्लीफाइड सिविल एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अक्षय जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राई एक्शियल टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट के एप्लीकेशंस, एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First, we will discuss what is triaxial compressive strength test, a test in which specimen is stressed under condition of axial symmetry. In this test, a cylindrical specimen of soil or rock encased in an impervious membrane, which is subjected to a confining pressure and then loaded axially to failure in compression. इस टेस्ट में सॉइल या रॉक के सिलिंड्रिकल शेप के स्पेसिमन को इम्परवियस मेम्ब्रेन में रखा जाता है और इस पर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया जाता है। इसके बाद स्पेसिमन को कॉम्प्रेशन में फेल होने तक एक्चुअली लोड लगाया जाता है। हियर compressive strength in all directions of a rock or soil sample is determined by using a triaxial sail. इस टेस्ट में रॉक और सॉइल सैंपल की सभी डायरेक्शन से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पता की जाती है। टेस्ट इन विच ड्रेनेज इज प्रिवेंटेड आर कॉल्ड अनड्रेन टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ्स ऑब्टेन्ड आर अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ्स। नाउ वी विल डिस्कस types of triaxial test. There are three main types of triaxial tests. First one is unconsolidated undrained test, which is also called as Q or quick test. Second one is consolidated undrained test, which is also known as S or slow test. Third one is consolidated drained test, which is also called as R test. Now we will see use of triaxial test. Point number 1, like cone penetration testing, triaxial testing is used to measure soil properties. Cone penetration testing की तरह ट्राइएक्शियल टेस्ट भी सॉइल प्रॉपर्टीज मेजर करने के काम आती है। पॉइंट नंबर 2, टिपिकली ट्राइएक्शियल टेस्टिंग इज यूज्ड टू सॉल्व स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स बाय डिटरमाइनिंग द शियर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ सॉइल। ट्राइएक्शियल टेस्टिंग के जरिए सॉइल की शियर स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का पता लगाया जाता है और ये टेस्ट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आती है। Point number 3, triaxial test is used for determination of shear characteristics of all types of soil under different drainage conditions. Triaxial test अलग अलग ड्रेनेज कंडीशंस के साथ सभी प्रकार के सॉइल के shear characteristics पता करने के लिए यूजफुल है। Now we will see how do you do a triaxial test. Triaxial shear testing can be conducted by two steps. Step number 1, the soil sample is prepared and set in the triaxial cell. Then the confining pressure is applied. Step number 2, here deviator stress is applied, which is an additional axial stress. Now let's discuss the stages of triaxial compression test. We know that there are two stages of loading in triaxial compression test. First one is consolidation stage, during which cell pressure is applied. In first stage of the test, the specimen is subjected to an all around confining pressure, that is sigma c,
on the sides and at the top and bottom. This stage is known as consolidation stage. This figure shows all around confining pressure on the sides and at the top and bottom. Figure also shows pore pressure gauge and pore fluid valve and pressure gauge. Now we will see shearing stage, during which deviator stress is applied. In the second stage of the test, which is called as shearing stage, an additional axial stress known as the deviator stress sigma d is applied on the top of the specimen. Thus, the total stress in the axial direction at the time of shearing is sigma c plus sigma d. This figure shows shearing stage during which deviator stress is applied. Our next point is major and minor principal stresses. Point number 1. In this test, specimen is stressed under condition of axial symmetry. Point number 2. The vertical sides of specimen are principal planes as there is no shear stresses on the sides. Point number 3. The top and bottom planes are the major principal planes. Point number 4. The confining pressure sigma c is equal to the minor principal stress, which is sigma 3. Point number 5. The total axial stress is equal to the sum of confining pressure, that is sigma c, and the deviator stress sigma d, which is the major principal stress. It is denoted by sigma 1. Point number 6. Because of axial symmetry, the intermediate principal stress sigma 2 is also equal to the confining pressure sigma c. Now we will discuss the main features of triaxial test apparatus. It consists of a circular base that has central pedestal. यहाँ पर एक सर्कुलर बेस होता है जिस पर सेंट्रल पेडेस्टल दिया हुआ है. The pedestal has holes which are used for drainage of specimen in a drained test or for the pore pressure measurement in the undrained test. इस पेडेस्टल में होल्स दिए गए हैं जिसे ड्रेन टेस्ट में ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज किया जाता है. Triaxial cell is a cylinder which has tie rods to support the cell. Triaxial cell एक सिलेंडर है जिसमें सेल को सपोर्ट करने के लिए स्टील के टाई रॉड्स दिए गए हैं. An air release valve is also provided at the top, which is kept open when the cell is filled with water. सेल के साथ एक एयर रिलीज वाल्व दिया गया है जिसे सेल को पानी से भरते समय खुला रखा जाता है. द apparatus इज माउंटेड ऑन लोडिंग फ्रेम. इस apparatus को लोडिंग फ्रेम पे फिक्स किया गया है. द डेविएटर स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द स्पेसिमन फ्रॉम अ स्ट्रेन कंट्रोल्ड लोडिंग मशीन. स्ट्रेन कंट्रोल्ड लोडिंग मशीन की सहायता से डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है. इन दिस टेस्ट पोर प्रेशर चेंजेस एंड द वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ triaxial test. Point number 1. The advantage of the test over the other test methods is that the specimen drainage can be controlled and pore pressure can be measured directly. इस टेस्ट की फायदेमंद बात यह है कि बाकी टेस्ट की तुलना में यहाँ हम पोर प्रेशर मेजर कर सकते हैं और इस टेस्ट में ड्रेनेज कंट्रोल भी पॉसिबल है. पॉइंट नंबर 2. The test can be easily conducted for all the three types of drainage conditions. Point number 3. The volumetric changes can be measured directly. Point number 4.
The stress distribution on failure plane is uniform. Point number 5. The test is suitable for accurate research work. The specimen is free to fail on the weakest plane. And the Mohr circle can be drawn at any stage of shear. ये सैंपल है अपना, ये लोअर स्टेज है या अपर स्टेज है, सैंपल के दोनों तरफ हमें इसको रखना है। तो ये राउंड वाला जो हाफ स्फेरिकल है, ये इस पे ये है, इसको प्लंजर रखेगा। इसे हमें एक तरफ लगाना है, इसको नीचे लगाना है। ये कैसा 37-38 के लिए बना हुआ स्पेशल। अगर मल्टी वाला होता है तो दीज आर वेरी डिफरेंट, अलग अलग है, तो आप इसको हाथ में लेके लगा सकते थे वहाँ पे। और दिस इज अ फिक्स। ये दो होल है, इसके लिए है, यहाँ से ये आउटलेट यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। इसका जो है इनर है, यहाँ से एक जो लगा हुआ है, ये भी यहाँ से लगा है सेंटर। नॉर्मली फ्रैक्चर में 3 टेस्ट करते हैं, यूयू, सीयू और सीयू। नॉर्मली हम यूयू टेस्ट कर रहे हैं, सीडी ट्रेस ड्रेन करके सैचुरेशन करना पड़ता है सैंपल। जो सैंपल अभी हमने लिया है, इसको हम खाली यहाँ पे कंफाइनिंग प्रेशर देंगे सेल के अंदर, साइड से लैटरल प्रेशर बोलते हैं, कंफाइनिंग प्रेशर, एंड देन उसको स्ट्रेस देंगे एंड लुकिंग फॉर द डिस्प्लेसमेंट और व्हाट लोड इट हैज डिस्प्लेस्ड, वो देखो। ये यूयू टेस्ट होगा। इसमें फिर सेकंड टेस्ट आता है 100 तो कंसोलिडेट। इसमें क्या है कि सैचुरेट करना पड़ेगा इसको, कोर प्रेशर देते हैं। सैचुरेशन के लिए जब सैंपल यहाँ लगाते हैं तो सेंटर में ये सैंपल मैंने लगाया यहाँ पे, ये होल खुला है, इस होल से यहाँ से नीचे से इसको टॉप में भी यहाँ पे दिया है, टॉप में भी आपको ये यहाँ ये खुला है, ये यहाँ से खुला है। ये सेंटर का जो पार्ट है, ये इसको दोनों तरफ से खुला। यहाँ पे टॉप से एक बैक प्रेशर है जो सैचुरेशन का काम करेगा। ओके, पूरा सैचुरेशन होने के बाद सैंपल से पानी पेनिट्रेट होकर ये सेंटर होल से बाहर आएगा। जब ये पानी बाहर आएगा, इट मींस द सैंपल इज फुल्ली सैचुरेटेड। देन यू अप्लाई द कंफाइनिंग एंड लोड। तब उसमें जो कोर प्रेशर आएगा, वो कोर प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से मालूम पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट देयर आर 2 थिंग्स, एक कांस्टेंट देने के लिए और एक लेने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये और लास्ट सीडी ड्रेन टेस्ट, सेम प्रोसीजर है, बट आफ्टर सैचुरेशन उसकी वॉल्यूम चेंज कितनी है, वो वॉल्यूम चेंज वो एक पुराना एपरेटस अभी है यहाँ पे, तो इससे और मर्क्यूरी लेवल से उसकी वॉल्यूम कितनी चेंज हुई है, आपने ये तो निकाल लिया, बट उसकी वॉल्यूम कितनी बदली हुई है, सम वॉल्यूम उसमें आपने देखा होगा कि सारा साइज लेंथ लाया डालने के बाद एक वॉल्यूम होता है, तो वो नॉन वॉल्यूम कितना चेंज है। तो हम अब ये यूयू टेस्ट करने जा रहे हैं। लोअर स्टेम, अपर स्टेम, 2 रिंग नीचे जहाँ 2 स्लॉट है, 2 रिंग ऊपर। तो इसको फिट करने के लिए रबर शीट है, यहाँ पे हमने 2 ऊपर लगाए, 2 पहले ऑलरेडी लगाए, उनको ये बाद में स्लाइड करना है। और मेम्ब्रेन शीट ये ऐसी इस तरीके से लगाई, ऑलरेडी कट करके आती है, हमने 1 दर्जन अभी सप्लाई किया है। एक कम से कम 10 सैंपल तो कर लेती है, अच्छा 10 शीट कर लेती है, 10 बार तो आराम से कर लेंगे। कहीं जाके एकदम कोर सेंटर सैंपल होगा और वो अगर इसमें चुप गया तो फिर फटने का चांस है। अदरवाइज जैसे यूज होता है उसको वॉश करना है अंदर बाहर, एंड बोरिक पाउडर या टैल्कम पाउडर कोई भी है ना, उसमें रखना है। जैसे ये अभी इसमें लगा हुआ है, देखो ये इसके अंदर लगा हुआ है पाउडर। नहीं तो क्या होगा, जब ये गीला होगा तो पॉलीप्रोपन होता है, जैसे इसमें टच होगा ये गीला रहेगा तो होल शुरू हो जाएगा और खराब होने लगेगा, 6 महीने में छेद आ जाएगा। इसको निकाल के साफ करके सुखा के तुरंत पाउडर में रखो। कोई भी एक डब्बा ले ले प्लास्टिक का जिसमें पाउडर डाला हुआ, उसमें खाली छोड़ देगा। और ये दूसरा पोरस टोन, इसको ये पोरस रहना जरूरी है। ये तो सैंड पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स अगर यहाँ जाके बैठ गए किसी भी इसमें तो ब्लॉक हो जाए, स्पेशली इन द ड्रेन सिस्टम। सो इसको टॉप और बॉटम में लगा देते हैं।
फिर पे फिल्टर करते हैं। अगर ड्रेन नहीं करना है तो ओनली सपोर्ट के लिए हम लगा सकते हैं। तो ये हर एवरी टाइम इसको उबाल के लेना, पोरोसिटी ओपन होनी चाहिए। हाँ, इसके पोर्स ओपन होने चाहिए, तो इसको उबाल के लेना। ये यूज नहीं है, अदरवाइज रेड दिखता है। इफ यू यूज इट, ये पूरा लाल दिखता है, ये लाल क्या है, तो इसको अगर उबाल के नहीं लेंगे तो वो सॉइल निकलेगा नहीं। तो ये रबर, ये सैंपलर है, इसमें अभी हमने सैंपल बनाया है। जो एलन की निकाल के रखा है मैंने यहाँ से, दोनों तरफ से 2 एलन की रहता है, इसको क्लैम्प किया है। नाउ वी हैव टू ओपन इट हाफ ऑफ। इसका एक तरीका है निकालने का भी, जैसे मैं अभी ये अब इसको उठाना नहीं, इसको स्लाइड करना, अदरवाइज ये हाथ में आ जाएगा आधा। बस पूरी बॉन्डिंग नहीं होती, फिर भी इस तरीके से स्लाइड करना। अब जो आप कह रहे थे ना, इसका आपको वेट लेना है, सब कुछ लेना है, क्योंकि नॉन मॉइस्चर है। इनिशियल ये 6% मॉइस्चर है, सो एंड सो इसमें उसका रेशियो ये बना 38/76 और नॉन मॉइस्चर नॉन डेंसिटी। इसका आपको ऑन में लेना है वेट, इनिशियल और फाइनल, तो वहां पे वो डालना है वो पैरामीटर्स के। इसको करने के पहले इसका एयर निकाल लेना है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सब किया, इसको बंद कर दिया, ताकि जब तक ये फिट नहीं होगा तब तक इसको इस हालत में रखना है, नहीं तो ये प्रॉपर बैठेगा नहीं। टाइटनिंग के इससे निकल भी गया। ये उल्टा ना डाले, हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर। इसको मैंने स्लाइड कर दिया, तो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन को थोड़ा सा, अगर नाखून किसके है तो निकाल के काम करिए, क्योंकि ये फट जाएगा। नाखून वाले लोगों से काम कर, थोड़ा भी इधर लग गया तो ये खराब हो जाएगा। ये फिट हो गया। अब मुझे यहाँ पे इसको चढ़ाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको फिट कर लूंगा। तो यहाँ पे जो 2 स्लॉट है, 1 और 2, दोनों में इसको पहले ये स्लॉट में चला गया, फिर ये सेकंड है। बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। देखो प्रॉपर बैठ गए दोनों स्लॉट में, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, बॉटम को सेम जैसा याद किया था, ठीक है। स्ट्रेच कर लिया मैंने। अब जो बची 2 ओरिंग है, इसको मुझे छोड़ना है। यहाँ पे जाऊंगा, एक स्लॉट, सेकंड, अभी प्लास्टिक की ट्यूब है, जो सैचुरेशन के टाइम यहाँ से यहाँ फिट करते हैं, फिर बैक प्रेशर देंगे, तो बैक प्रेशर यहाँ से जाएगा, इसको सर पे यहाँ से जाके सैंपल पे नहीं खुला है सर, देखो ये 2 खुले हैं, ये इसके हैं,
जो बंद है वो इसका। और ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये है, ये दो इसके हैं, ये अंदर सेंटर वाले। बट इतने ध्यान रखो, इससे ही हमें ऊपर से बैक प्रेशर देना है। जो ट्यूब है, ट्यूब से यहाँ लगा दिया, तो ये सैंपल यहाँ से इसको सैचुरेशन के लिए डालेंगे। और सैचुरेशन का प्रेशर हमेशा कंफाइनिंग से कम रखेगा, नहीं तो मेम्ब्रेन फट जाएगा। कंफाइनिंग अगर समझ लो मैंने 1 बार दिया है, तो मैक्सिमम इसको 0.5 से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है, 3 से करना है, 4 से स्लोली। नहीं तो फिर भी वैसे सॉइल अगर हाई डेंसिटी है, इसको 5 स्टेज में डिवाइड कीजिए। अगर 1 बार मैंने कंफाइनिंग दिया है, यू नो दैट दी सॉइल डेंसिटी इज वेरी हाई, तो उसको 5 इसमें डिवाइड कीजिए। 2-2 घंटे का पहले 0.2 करिए, फिर 0.4 करिए, पूरा देखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये जाएगा आपको गीला दिखाई देगा कि भाई जा रहा है, जा रहा है, स्लोली जा रहा है। क्योंकि ज्यादा प्रेशर करेंगे तो मेम्ब्रेन फटने का चांस है। नो वी आर रेडी, अब इसको लगाएंगे। Ensure that कि ये सेंटर रहना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे स्फेरिकल भी है, ठीक है। फिर इसको डायगोनली टाइप करना है। इसमें क्या है, ओरिंग है, यहाँ ऊपर ओरिंग है, दोनों के बीच में ये सब प्रेशर रहेगा। ऑलवेज कभी भी जहाँ पे रबर होता है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द टाइटनिंग। देखो ये भी जा रहा है, बिकॉज वो रबर है ना, दब रहा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो इधर के कस लिया, यहाँ का कस लिया, तो यहाँ से चिंगारी आना शुरू। और डिपेंड, ये ओरिंग ऐसा बदलना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है रबर। यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको होल्ड करने के लिए। अब क्या हुआ, मैंने पानी भरा, सब कुछ हुआ, अब मैं कंफाइनिंग दे रहा हूँ और यहाँ से प्रेशर अंदर गया, वैसे क्या होगा, इसको प्रेशर मिलेगा, ये ऊपर गया, और बाद में अगर ये सैंपल वापस वहां जाके नहीं बैठेगा, सैंपल ऐसे हो गया, तो फिर आपको पूरा काम करना। यहाँ पे हमने क्या एक स्टैंड देके एक लॉक दिया है, जैसे वो वहां पे कल 2 पिन दिए थे, यहाँ पे एक लॉक दिया है जो इसको पकड़ के होल्ड करके रखेगा, और बिफोर टेस्ट उसको निकालना है, तो ये इश्यू वही होगा, रॉड पे प्रेशर आएगा। तो ये लॉक है, वो देख रहे हैं हमारे। देयर आर 2 मेथड्स, वन इज सॉइल कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम, दूसरा एयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम। Is basically used for back pressure, which we require to get simulation to the C foundations, basically high foundations, because there are oil का काफी ज्यादा डेंसिटी होने के कारण हम लोग वहां इसको यूज करते हैं, वहां की कंडीशन यहाँ सिमुलेट करते हैं, इसलिए एयर वाटर से ज्यादा हम लोग ऑयल वाटर करते हैं। एयर वाटर कैन ऑल्सो बी लाइक आपका रिएक्टर्स है, एनपीसी तारापुर में रिएक्टर्स है, वहाँ विंड प्रेशर बहुत ज्यादा है, समुद्र किनारे है, तो वो लोग ये यूज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइट कंडीशन हमें यहाँ देखना है कि वेयर कौन सा सैंपल है, वेयर इट हैज बीन फाउंडेशन होगा। तो ये नॉर्मली हाई हो या लो, बट वी आर प्रेफरिंग दैट कि आप ये यूज करो, इट कैन बी सिमुलेट बोथ द कंडीशंस। सैंड सैंपल है, अगर आप राजस्थान में हो, सैंड से कुछ करना है, तो आपको एयर वाटर ही लेना पड़ेगा, वहाँ हाई डेंसिटी का कुछ नहीं होगा। इस तरीके से उस कंडीशन सिमुलेट करना है। तो नीचे वाटर चाहिए और डेंसिटी हाई वाला ऊपर ऑयल चाहिए, तो ये दोनों मैंने सेट करके रखा हुआ है। दोनों मिक्स कर देंगे। आगे तो पानी भर रहा है, तो ऑयल रख लो। ऑयल तो आपको भी तो पंप के लगे, अच्छा पंप के लगे तिथुन है, तो प्रेशर सी ये पंप करता है, यहाँ पे सेंटर में इसका होल है, ये रॉड है नीचे, ये यहाँ से ऑयल बाहर फेंक रही है,
अच्छा तो पहले ऑयल का प्रेशर एयर पे वाटर पे जाएगा और वाटर आगे देगा। अच्छा सो इट इज कॉल्ड एज वाटर ऑयल वाटर कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। तो पहले ऑयल पे रहेगा फिर पानी पे जाएगा। तो हमने ये दोनों सेट करके रखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, कांस्टेंट है, प्रॉपर है, दोनों गेज भी सही है। दोनों मैंने एक गेज एक बार पे अभी लगा के रखा था काफी टाइम पे। एक होता है लैटरल प्रेशर देने के लिए सेल को कन्फाइनिंग प्रेशर, एक होता है बैक प्रेशर देने के लिए सैचुरेशन ऑफ द सैंपल। सो दो, इसलिए दो सेल का लगता है। पहले होता था एक ही होता था, क्योंकि तभी ज्यादा अभी हम लोग ये ड्यूअल प्रोसेस निकाल रहे हैं। सो नाउ ये सिस्टम रेडी है ओनली गिविंग लैटरल प्रेशर के लिए। अब हमें यहाँ पे इसको सैंपल को वाटर फिल करना है। वाटर फिल करने के लिए अभी सिस्टम यहाँ हम यहाँ नहीं ले सकते, इसको फिट किया है। अभी इसको हम यहाँ वहां पे ले चल ये कैसा त्याच्या लेंथ प्रमाणे ठेवले जाते। अभी इसको वाटर फिल करेंगे। नॉर्मली मैं आपको जो बताया था यहाँ पे रख के इसको जो त्याची जी इनलेट आहे ना, एक वॉटर टँक हे जे आहे याला भरून ठेवायचं, त्याच्या छेद मधून गोल पाडायचं, ती ट्यूब टाकायची। नाही नॉर्मली अभी जो सिस्टम हमारा हुआ है ना ते सगळं नवीन बोले की नव्हे। आता इथे काय होतं, पाणी गेलं की हे खराब होतं आणि कंटिन्यू त्याच्यामध्ये एअर गॅप जास्त राहतो। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसमें एयर रहता है। सेल्फ ये फिल करना, यहाँ डालना इतना पानी और ये बाद में ये खराब हो जाता है। ऐसे अभी होप सो ये सही रहेगा। हाँ दो रहते ही रहते हैं, क्योंकि वो देती है बाय डिफॉल्ट। एक ब्लॉक हो गया तो दूसरा चाहिए ही चाहिए। हाँ तिथून थोडा आवाज थोडा येऊ दे वर आणि मग टाईट कर। अजून याच्यात इथून होतं ना ते लोक आपण खाली वो बोला था सर को आणि पोर प्रेशर मी चौथा टाकून देतो त्यांचं। मी यानंतर कधी चौथा चैनल में वॉल्यूम चेंज का डाल के रख देता हूँ, जब लेना है तो ऐसे ही फर्क नहीं पड़ता। 4 चैनल पीछे रहेंगे, जब भी लेना है आपको वॉल्यूम चेंज। बस बस बॉल आणि अरेंजमेंट किती दिवस आपण ठेवू शकतो? 22 म्हणजे 8 दिवस कसं तो पाइप एक्सरसाइज काढू शकतो, काढावी लागेल म्हणजे हीच असेल ना फक्त? नहीं सेल काढून सेल काढून धुवून ठेवावं लागेल। नॉर्मली या पाईप मध्ये पण पाणी भरायचं, जेणेकरून याची एअर याच्यात जाईल। तो एक प्लास्टिक का ये आता है, उसको मैं वही बोला, एक छोटी सी फनेल टाइप का रास्ता है पूरे ऐसा। अदरवाइज पानी है ना, वो पानी यहाँ चला आएगा तो वहाँ कम होगा। सो यू हैव टू अगेन फील द वाटर देयर। तो ये थोड़ा और वाटर वही रहना चाहिए, अदरवाइज वो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा उसका। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ये पाइप फिल कर लेते हैं पानी से। बॉटल नहीं होना, बॉटल लेते ना, तो बाकी तो नहीं इसमें है।
तो पाना दे इकडे लावायचं इकडे लावायची कारण हा यहाँ से पानी इनलेट है ठीक है तिथे हे असं ठेवलं ना हे मागे पाहिजे होतं मागे आलाच ठीक है बाद में ये देखिए ये जो बॉल है इसको प्रॉपर अलाइन करना है इसमें जस्ट पेड झालेलं पाहिजे हा आपण तिथे पण इम्युनिटी आणि याचं बघतो जस्ट इसको टच होना बहुत जरूरी है एंड देन यू हैव टू लॉक इट फ्रॉम टॉप साइड ओके ऐसे इसका पिन होता है टाइप करने का बट ये टच है आपका इनिशियली पहले मुझे कन्फाइनिंग प्रेशर देना है इसको कन्फाइनिंग प्रेशर है लेंगे ये दो वॉल इंडिविजुअल है 1 2 3 4 एक पार्ट है 1 2 3 4 एक पार्ट ऑन होते ही पंप दोनों तरीके से शुरू होता है लोड रिलीज ये जब तक टाइट नहीं करेगी एंटी क्लॉकवाइज तब ये ऑयल आगे नहीं जाएगा ओके तो जैसे ये इसको मैं टाइट करूंगा तो ये ऑयल यहाँ आएगा इसको टाइट करूंगा तो ये ऑयल यहाँ ठीक है तो अभी हम खाली ये यूज कर रहे हैं क्योंकि इसको कनेक्ट किया है तो अब जस्ट इसको टाइट किया मैंने क्या होगा ये प्रेशर जनरेट करना शुरू होगा ये बंद है पीछे आउटलेट बंद रखना है ये आउटलेट जो फिक्स है ये इसको मैं बंद रखा हुआ क्योंकि मुझे पहले इसको यहाँ जनरेट करना है देन आई फॉरवर्ड इट टू फर्दर अब मैंने इसको 0 करके रखा है ऑलवेज ये स्लो फास्ट और फाइन दिस साइन गिव्स यू स्लो करना है फास्ट करना है इतना तो समझ में आ रहा है तो बस इसको हल कर सकना है जब तक ये प्रेशर स्टार्ट नहीं होता तो अब ये मेरा टैंक फुल है स्टार्ट हुआ फिर मैंने इसको स्लो किया स्लो फास्ट और मुझे 1 बार देना है इसको मैं 1 बार तक ले जाऊंगा स्लोली और इसको वहां जाके ठीक है तो मुझे आगे नहीं जाने देना है तो आई हैव टू मेक इट फाइन इट इज रिटन हियर FINE फाइन मतलब उसको ट्यूनिंग करना है आपको ये वहीं रहे थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि यार ये क्या हो रहा है नीचे तो नहीं आ रहा है बिकॉज व्हाट अपन अगर स्लो करते हो ये नीचे आएगा फास्ट कर रहे हो तो ऊपर जाएगा तो आपको उसको ट्यूनिंग करना ये यही रहना है अब ये यहाँ कैसे रह रहा है यहाँ पे जो पंप है ये इसका इतना ही प्रेशर जनरेट कर रहा है बाकी ऑयल वापस अंदर छोड़ रहा है जो बीच बीच में आवाज आ रही है गड़गड़ वो वापस अंदर वही कर रहा है और ये इट हैज गिवन अ कांस्टेंट आउटलेट जो मैंने खोला है ये आउटलेट होला है उतना ही यहाँ पे दिखाई देगा ओके अब ये कांस्टेंट हो गया ये क्लियर एंगल रुकना है कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हाइड्रोलिक सिस्टम में अब मैं इसको क्योंकि ज्यादा रखते नहीं हम इसको 1 बार रखते हैं क्योंकि रिलीज हो गया है ठीक है ना मैं इंक्रीजिंग द प्रेशर
11 पे स्मॉलर पॉइंट। अब ये 0 से शुरू कर रहा है, आप लिखो डिफ्लेक्शन में 0, उसके बाद 50, फिर 100। उसके बाद हम लोग जैसे मैं ये बोलूँगा यहाँ पे आप 50 का देख लो कोई एक, जैसे पहले ये 0 है, ये इंश्योर करो ये 0 है, और ये लॉक है जो हमने किया था ऑलरेडी। इस लॉक को साइड में कर दीजिए। जीरो। ठीक है, अभी टच हुआ। ठीक है, अब से शुरू करो। क्या किया समझा मैंने? क्योंकि ये गैप था, अब ये शुरू हो गया। नाउ स्टार्ट फॉरवर्ड, दोनों शुरू होगा ना अभी। हाँ, मैं 50 बोलूंगा, ऊपर देख लेना सर आप। हाँ हाँ, डिविजन काउंट कराएंगे। डिवीजन यस, 3 डिवीजन। मुझे 1 2 3 कैसे है? यस 100 किती होते? 4 4 डिवीजन की 4 डिवीजन। चार। तो इतना लिया तुम्ही? यस 4.5 समजा 4.5। ठीक आहे, बघा खाली कोणीतरी। हाँ, ओके रीडिंग 5 5 5 डिविजन। ओके 6 6 6 डेन्सिटी नसेल ना? 6 पर हाँ 6.5। ठीक आहे, व्हेरी गुड। बल्जिंग होतोय ना तो, बघू होतं. सरळ असताना काय झालं सर बल्जिंग मध्ये? 7 म्हणजे कसं पण कशाला होतं ते? होतं ना? 8 7 8 इकडे इकडे तिकडे जाईल, तिकडनं 2 तिकडनं जाईल. 7 आता आहे 7.5. आता आहे आता आहे Yes. 8.5. तेव्हा मी सांगतो तुम्हाला 0 वालं. हां नेक्स्ट 9 Yes. 9.5. सॅम्पल बल्जिंग होतोय, आता काय वाढणार नाही वाटतं. 9.5. 9.5 ना? कारण दिसला तुझा हे अँगल चेंज झालाय, हेच तर आहेत सगळे गमती. 9.5. 9.5 स्टॉप, रिलीज, रिव्हर्स, स्टॉप. याला स्टॉप केला, याला रिव्हर्स टाकला, कारण रिलीज गेला पाहिजे, हा मागे चाललाय, आणि इथून हे रिलीज केलं. तो घ्या ह्या अलीकडचा. आपण अलीकडची नाही, वापर. इकडे ते काढायचं जमून असं. ती चपटी झाली. आणि नॉर्मल काय नाही होत. त्यामुळे ह्या ओरिंग आहेत ना, इथे पण आहे वर. हां, तिथे. तरी ट्रॅक नख नाही लावायची. नका नाही म्हणलं. नखवाल्यांनी काही कामच नाही त्यांचं इथे. देख सगळ्यांना किती आणले? चिमटे असले तर पत्र चिमटे असतात हे काढायची गरज घेतली ना रिंग नंतर आपण तो प्रेस चिमटा असतो हां, तसं तसं काही अरेंजमेंट नसते. आणि तुम्ही म्हणताय ते एखाद्या नकावाला लावलं सगळ्यात जास्त मेंब्रेन मागतात आमच्याकडे. ते लावा. 4D मध्ये आहेत. सो आपलं हे परफेक्ट होतं ॲज इट इज सॉइल.
काहीच नाही झालं. हे असं जायला पाहिजे, नाहीतर मग ते ओलं झालं ना कुछ फायदा नाही. कॉम्प्रेशनचा जो मोड आहे त्यामधून हे सॅम्पल तयार केलं का? हे काय सॅम्पल तुमच्या पुढे हे का? दीपक सर. व्हेरी गुड. बघ आता घे तुझा मोड, खेचू नको, मला दाखवायचंय त्याचाही तुम्हीच खेळला. आहे ना बाकीचं. तोच बल झाला. आज इट इज ड्राय निघाला. वॉट आपण वरच्या बाजूलाच तो बल्ब झाला. त्याची आता हे बघा इथे तुम्हाला दिसेल लुक ॲट हातात घ्या, तो वाढली बघा शेप कसं झालं. नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ फेलियर. दिस इज स्लांटी फेलियर. हा असा झालाय. नॉर्मली बल्जी असतो ना तो असा होतो. Hope you liked the information given in this video. If you are watching my channel for first time, then click on subscribe and share with all your friends. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.